It says it's getting frustrated. An Afghan who wants to talk to you. Salam Khoshamdeed, sir. My name is ABC. I was born in Afghanistan in 1987, but soon migrated to the UK. I want to discuss my interactions with Pakistanis with you. Well, it's not going to be a good one. I realize whenever I talk to my Pakistani friends, they're always obsessed with discussing Afghanistan. The conversation never goes in the right direction. You can't have a healthy discussion because they can't seem to understand or comprehend why Afghans dislike Pakistan's policies, or more specifically, the Pakistani government. When I tell them it's because of Pakistan's history of supporting the Taliban, they get triggered and say we no longer support them. We fight terrorism ourselves. We lost thousands of people from terror attacks after the takeover. When I bring more proof of different points as to the negative role Pakistan has played in Afghanistan, the insecurities and contradictions start coming out, and the typical boasting. We funded / supported the Mujahideen during the Soviet war, took in millions of refugees, yet you are all ungrateful. But their most insecure point that they obsess over India. You guys take support from India. Look what they're doing to Kashmir, and you organize terror attacks with their intelligence services into Pakistan, etc. I never demand reparations from them. Neither do I have. Neither do I ever make them feel they should apologize to me for all that went down in Afghanistan, but in every interaction, that's usually where the conversation heads. And when I critique Imran Khan and his hypocrisy on defending Kashmir while being in bed with China as he validates what they're doing to the Uyghurs, they ignore to or deflect or justify in some way or another. Basically, what baffles me when discussing politics with Pakistanis based off my observation is that you can't criticize any aspect of their country, whether it's the general actions or mindset of their people or the policies of their government. They justify everything or deflect and say, well, you guys and India, you guys and America. Most of the times I try to avoid this discussion because it's a pain point for me, but they somehow always involve me into it and ask for my approval on their opinion. I do not hate Pakistan or Pakistani people in general. That's why I have such good friends, and I live in a neighborhood with most Pakistani being professionals in their field. Why is politics so center of focus of every Pakistani? देखिए, first of all, we have nothing else to talk about. वही कहते हैं ना कि जब आप ना कोई किताब पढ़ते हो, ना आपकी कोई हॉबी होती है, ना आप ट्रैवल करते हो, तो आपके पास बात करने को और दिखाने को ही चीज़ें रह जाती हैं. तो दिखाने को फिर लोग अपने डिज़ाइनर कपड़े, जूते, गाड़ियाँ ही दिखाने को रह जाती हैं, घर दिखाने को रह जाते हैं, और डिस्कशन फिर घूम फिर के वही, क्योंकि उनका यार जितने पाकिस्तान ऑब्सेस्ड है ना पॉलिटिक्स से, उनको पॉलिटिक्स की ए अलिफ बे भी नहीं आती. कोई भी पॉलिटिक्स आपसे डिस्कशन करे ना, तो उससे ज़रा ये पूछेगा कि सेनेट का काम क्या होता है. जब पार्लियामेंट है हमारे पास, तो सेनेट क्यों होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, सेनेटर के इलेक्शन क्यों नहीं होते जिस तरह, उनको पता ही नहीं होगा. दे डोंट इवन नो कि डिफरेंट हाउसेस के फंक्शंस क्या हैं. ये जैसे अक्सर आप मेरी वीडियोस के नीचे देखें, लोग हमेशा कहते हैं जुनैद अकरम फॉर प्रेसिडेंट. अबे प्रेसिडेंट के कोई राइट्स ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है. प्रेसिडेंट की बातें लीक हो जाती हैं यहाँ पे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद कोई पावर ही नहीं है. लोगों को पता ही नहीं है सेंटर ऑफ पावर कहाँ है. तो सो पीपल हैव नो नॉलेज, और जिसके पास नॉलेज नहीं होती ना, वही ज़्यादा देखें फटाफट क्या खाली ढोल ज़्यादा शोर करता है. सो इनका कोई नॉलेज बेस तो है ही नहीं. वो एक ही सेंटेंस में आपको दो बातें करेंगे. वो बातें ये करेंगे, एक टिपिकल पाकिस्तानी का माइंडसेट ये है कि अमेरिका झूठ बोलता है, ये कभी चांद पे गए नहीं, लेकिन ऑन द सेम ब्रेथ वो ये बोलते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहाँ अजान सुनी थी और वो आके मुसलमान हो गया, और नासा हमसे ये बात छुपाता है. दुनिया फ्लैट है, लेकिन वो चांद पे गए थे और दुनिया गोल भी थी. एक ही सेंटेंस में आपको दो डिफरेंट. पीपल आर जस्ट सो इलिटरेट. मैंने तो फेसबुक पे कमेंट करना ही छोड़ दिया है. इंस्टाग्राम पे अगर मैं करता भी हूँ तो मैं बस ट्रोल कर देता हूँ कभी किसी को, ऑब्वियसली नॉट बीइंग टू पर्सनल. मगर ये कि इट्स नॉट वर्थ योर टाइम. लोगों को आप बात उससे करो, इसको कुछ दो बातों की समझ तो हो. पता है नहीं, शोर पूरा करना है. वही वाली बात जैसे आपने कहा कि जी इमरान खान की हिपोक्रेसी की आपने जिस तरह जिक्र किया कि जी कश्मीर पे शोर करता है बट चाइना उइगर को मारता है. सेम इसी तरह बर्मा को हम रो रहे थे कि जी म्यांमार में इतना जुल्म कर रहे हैं, मगर यमन की आवाज़ नहीं निकालती. मसला ये नहीं है कि मुसलमान मर रहे हैं, मसला ये है कि जो मार रहा है क्या वो हमें पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा. चाइना पैसे दे रहा है तो खल्ली वल्ली
उइगर वो मार दिए, मस्जिदें ख़त्म कर रहे हैं, उनको री एजुकेशन सेंटर्स में डाल रहे हैं। कितनी रिपोर्ट्स हैं, आप जाके देख लें, इतनी वीडियोज़ हैं, मगर कुछ नहीं होता। म्यांमार वाले, हमें पैसे दिए कभी उसने? नहीं दिया ना। और खल्ली वल्ली हम उसके ख़िलाफ़ धरने भी किए, सेव बर्मा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2015 में छुट्टियों में मैं आया हुआ था, तो कराची में बहुत ही ख़तरनाक हीट वेव आई थी, और उसमें तकरीबन 500 प्लस लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसमें ज़्यादातर बेचारे वो थे जो होमलेस, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो बेचारे वैसे ही बाहर रहते हैं। तो हीट वेव बहुत ख़तरनाक थी। एंड देन आई रेज फंड्स, एंड देन कफ़न ख़त्म हो गया था कराची में। तो कफ़न ढूंढने ढूंढने पता नहीं मैं कहाँ जोड़िया बाज़ार चला गया, वो अरेंज किए। फिर जगह जगह वो बने होते थे मेक शिफ्ट सेंटर्स, फिर वहाँ पे चीज़ें जमा कराना, किसी को क्या चाहिए, जूस के कार्टन, किसी को बर्फ़ नहीं मिलती थी भाई। इतनी ख़तरनाक हीट वेव आई थी, मगर हमने उससे क्या सीखा? कुछ भी नहीं। अब फिर हीट वेव में बैठे हैं। तो जब वो आई थी, तो मुझे बहुत सारे लोग बाहर से भी पैसे भेज रहे थे। तो किसी ने मुझे अमेरिका से भेजे पैसे, जो कि एमसीबी से रिसीव करने थे। राइट नाउ, जो लोग कराची में रहते हैं, एमेजिना रोड है, जामा क्लॉथ मार्केट आप क्रॉस करते हैं, और आपके सीधे हाथ पे सिविल अस्पताल आता है, और उल्टे हाथ पे कौसर मेडिको आता है। राइट, और उसके बराबर में एमसीबी की ब्रांच है, बहुत पुरानी ब्रांच है। राइट, अब सामने सिविल हॉस्पिटल है, और वहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। राइट, क्योंकि ज़ाहिर है इमरजेंसी थी, 500 बंदा मर गया, मजाक नहीं, कब्रें ख़त्म हो गई थी। तो बहुत सारी मुझे याद है एदी फाउंडेशन ने फिर मास ग्रेव्स बनाई थी, और बहुत सारी लाशें अननोन थी, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, वो ड्रग एडिक्ट से, उनके पास ना आईडी होती, ना कुछ, ना उनका कोई पूछने वाला आता है। तो मास ग्रेव्स बनी थी, लुक इट अप प्लीज़। तो मैं जब एमसीबी बैंक गया, तो मैंने बोला जी अमेरिका से पेमेंट आई है, पता नहीं कोई $200 थे, $300 ऐसी कोई अमाउंट थी। तो उन्होंने बोला कि किस ज़ुमरे में आई है। राइट, तो मैंने कहा कि ये फंड्स हैं कॉज रिलेटेड, मैंने कोई इस तरह की बात की। तो उन्होंने बोला बर्मा के लिए। उस ज़माने में बर्मा वाला इशू चल रहा था, म्यांमार वाला इशू, कि ये बर्मा के लिए आए हैं पैसे। तो मैंने बोला खुदा के बंदे, तू सिविल हॉस्पिटल के सामने बैठा है, जहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, 500 बंदा मर गया है, तो तुझे जहन में ये क्यों नहीं आया कि इसके लिए हो सकता है? तू बर्मा क्यों पहुंच गया? पहले तो बता बर्मा का कैपिटल क्या है, फिर आगे बात करते हैं। तो हम ना बड़े अलूफ है कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमें बस तीसरे मोहल्ले की चाहिए खबर। तो इतना वो था उस ज़माने में, प्रोटेस्ट भी होते थे वगैरह वगैरह। अगेन, क्यों बर्मा पैसे नहीं देता? सऊदी भी तो यमन में इतने अरसे से वॉर कर रहा है, यमन में कितना जो है बच्चे भूख से मरे हैं, क्या उसके लिए कभी देखा आपने कोई प्रोटेस्ट? सऊदी एम्बेसी ये पीछे गली में, यहाँ पे कभी आपने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट? क्यों? सऊदी पैसे देता है। तो मसला ये नहीं है कि मुसलमान मर रहे हैं या मुसलमान ही मार रहा है, मसला ये मारने वाला हमें पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। दैट्स इट, यही मैट्रिक है पाकिस्तानियों का, और इनकी हिपोक्रेसी है। खैर, तो नहीं किया करें डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात वहाँ करें जहाँ पे आपको उम्मीद हो कि चार अकल की बातें सुनने को मिलेंगी। एंड बहस बराए बहस नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये सोच के करनी चाहिए। मेरा हमेशा ये आर्ग्यूमेंट होता है, और थॉट ये होती है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, ताकि मुझे कुछ सीखने का तो मिले। इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो कोशिश हमेशा ये नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं कितना सही हूँ या मैं कितना अच्छा हूँ। मेरे अपनी पर्सनल ख्वाहिश होती है कि मैं गलत हूँ, ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। आई कैन मेंड माई वेज। ज़िंदगी जहालत में नहीं गुजारनी। तो मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह यही अप्रोच रखी, इसीलिए हम सीखते गए और इवॉल्व होते गए। इंसान होता ही इवॉल्व है ना वक्त के साथ साथ। तो ये कि नहीं जी मैंने जो मान लिया है वो उस पर मैं ईमान ले आऊँ, और मैं तो गलत हो नहीं सकता, ना मेरा लीडर गलत हो सकता है, ना मेरा मसला गलत हो सकता है, बस ख़त्म बात, ख़त्म शुद्ध। ये नहीं करना होता हमेशा। यू हैव टू बी ओपन। तो बात उससे करें जो कि जिसका मकसद आपको नीचा दिखाना ना हो, उसका मकसद हो रेप्रिमेंड होना या करना अपने आप को। तो जब आपने देखा कि अगले ने किसी भी सूरत मानना ही नहीं, तो उसे बहस ही कर, अपना ही टाइम और अपनी एनर्जी ज़ाया करना है। ठीक है ना? एनर्जी जो है ना बड़ी स्केर्स है दुनिया में, तो वो सेव करके रखनी है, और मेंटल पीस भी सेव करके रखना है, ऐसों पे ज़ाया नहीं करना। तो कोशिश करें पाकिस्तानियों से इन टॉपिक्स पे बात ही ना किया करें। बोले हाँ आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, हम हाँ इंडिया से मिले में और हम ही कर रहे हैं, हाँ ठीक हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप इतने बड़े हो, इतनी अच्छे आपकी सब कुछ इदारे हैं, तो फिर कर लें, फिर क्या बंदा बहस करे यार। सो या
I understand the grievances Afghan people have towards Pakistan, and of course Pakistan has meddled a lot into their affairs, और हमने उसको प्ले ग्राउंड बना के रखा ग्लोबल पावर्स के लिए. अब ये जो कह रहे कि जी हमने मुजाहिदीन भेजे या हमने रेफ्यूजीज़ लिए, भाई आपको नहीं लेने पड़ते रेफ्यूजीज़ अगर आप मेडल ना करते. आपने अपने डॉलर के चक्कर में दूसरों के बच्चे बाहर भेजे, अपने बच्चे बाहर अमेरिका भेजे, दूसरों के बच्चे आपने काबुल भेजे, राइट. और पैसे भी ले लिए, पेमेंट भी पूरी पकड़ ली एडवांस में. अब जब उसका स्पिल ओवर आया आपके शहरों में, तो अब आप कह रहे हो कि जी अफ़गान इतने क्यों भर गए यहाँ पे, ये है वो है. खैर अब ये बड़ा डीप टॉपिक है, इसमें बंदा ना ही जाए. सो ग्रीवेंसेस समझ आती हैं, और ऑफ कोर्स इनको एड्रेस होना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पे कौन गलत है या क्या सही है, कि आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है. जो हो गया यू कैन नॉट चेंज इट. द ओनली थिंग यू कैन लर्न, इमरान खान की मुझे ये बात बहुत पसंद है, द ओनली थिंग यू कैन डू विद योर पास्ट इज़ लर्न फ्रॉम इट. उसका आप और कुछ नहीं कर सकते, कब तक रहोगे उस पर बैठ के. सो वी नीड टू सिट डाउन एंड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, जो कि दोनों साइड से हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. लेकिन हमने अपने बुद्ध बनाए हुए और हमने उन्हीं की बस पूजा करनी है, तो बस फिर करते रहें. सो ये वाली बातें अवॉइड ही किया करें. और ये बड़ा शौक़ है हमारी आवाम को भी कि दूसरों के बारे में जानना है कि जी आपकी सोच क्या है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, या आपका ये क्या है या वो क्या है. मतलब क्यों भाई, व्हाट डज इट हैव टू डू विद यू, या मुझे आपकी ये चीज़ें जान के मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़ायदा होगा. आप अगर इसको इस तरह वे करना शुरू करें ना चीज़ों को, कि मुझे मेरी ज़िंदगी को या मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा ये जान के कि आप पीटीआई सपोर्टर हैं या आप नून लीग की सपोर्टर हैं, मुझे क्या, जो भी हैं अल्लाह आपको खुश रखे, बात ख़त्म, आगे बढ़ते हैं. लेकिन चूँकि हमारे पास वही वाली बात है ना, देखिए बात करने का शौक़ बहुत है, करनी भी है, मगर किस पे करें. ना ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी, जो एक किताब पढ़ी वो भी किसी और ज़बान में पढ़ी, कुछ सीखा ही नहीं उससे. और जो है बस लोगों के अंदर झांकने की एक ताक झांक की आदत है. कंटेंट भी हम उसी तरह का देखते हैं कि अगले के घर में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में भी हमें चाहिए. हमें बस सबको तबलीग कर, सबको एक ही रंग में लेकर आना है, और ख़ुद उस रंग के हैं नहीं. चाहे वो मसलक की तबलीग हो, चाहे वो दीन की तबलीग हो, सबको मुसलमान करना है, ख़ुद नहीं होना. तो यही चीज़ फिर हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. भाई मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ख़त्म बात. तो बहसीले हैं हम, बहैसियत कौम हम बहुत बहसीले हैं. वही वाली बात कि हमारा बहस करने का मकसद ये नहीं होता कि उसका कोई रिज़ल्ट निकले, बस हमारा मकसद ये होता है कि मैं कितना सही हूँ और तुम कितने गलत हो. तो जहाँ पे ये अकड़ और मैं आ जाती है, वो बात किसी मुद्दे पे पहुँच नहीं पाती, वो फिर आप गोल चक्कर ही काटते रहते हो, एंड यू जस्ट रनिंग इन सर्कल्स. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग विद समवन जिसने खुद को अपने आप को चेंज करने नहीं है. हाँ, आई एम ओपन टू डिबेट विद समवन जो खुद भी इस नज़रिए से आए हो कि हाँ यार, मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो मुझे कुछ 4 बातें सीखने को मिल जाएँ. लेकिन हमारे यहाँ ये सोच वाले लोग नहीं मिलते. हमें बस ये मिलता है कि नहीं मैं ही सही हूँ और तुम सारे गलत हो. तो ये पागल खाने में ही होता है. पागल खाने में हर पागल कहता है कि मैं ही पागल नहीं हूँ, बाकी सब पागल हैं. तो ये पागल खाना हमने एक बहुत बड़ा बना दिया है, और हमने दुनिया भर में फैला दिए हैं, और वो बस करते रहते हैं. सो कोशिश कीजिए, अवॉइड करें, इन टॉपिक्स पे ना जाएं. क्रिकेट की बात कर लिया करें, या आगे पीछे, फिर उसमें बोलेंगे जी इंडिया से सीख रहे हो क्रिकेट और हमें हरा रहे हो आगे पीछे. भाई अपना गेम अच्छा करो, आगे हो जाओ, ख़त्म बात. सो सॉरी टू हेयर दिस, बट इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.